A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita and on behalf of the whole Etuson family, I welcome you all to today's class. I'm teaching in Science Class 8 and we are reading Chapter 6, that is Combustion and Flame. Okay, and this is going to be the third part. I've already taught the first two parts, so if you haven't watched the first two parts of this chapter, you can go to the playlist of the channel and you can watch it. Okay, so that it will be much easier for you to remember or to learn this part. Okay, so we'll be seeing what we'll be teaching, what we'll be learning today. But before that, let me tell you that Education is providing quality education for a better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. So without wasting any further time, let's get started. So what we are going to discuss today? Today we are going to discuss the types of combustion, flame and structure of the candle flame. Okay. So what we have actually learned in the previous class, we have learned what we have learned. Can anybody tell me if you have watched the previous video? You can tell me what you have learned. We have learned what are the three things that are essential for combustion. Can anybody tell me? First is air, second is fuel, and the final what is fire. Okay, these three things are essential in order to have a combustion, and if any of these one is withdrawn, then there will be no fire. Okay, what is the ignition temperature? The temperature at which a thing catches fire and burn is called ignition temperature. And what are inflammable substances? Substances which have very low ignition temperature are known as inflammable substances. Examples are petrol, diesel, CNG, LPG. Okay, and what are the things that can be used for exhausting or in exhausting the fire? First is water. Water can be used in terms of small things like paper, or you can say wood, cloth and all. But in case of electrical appliances and in case of fuels like that of your petrol, diesel and all, water should not be used. The reason is that in case of electrical appliances, there is conduction of electricity if we will be putting water into it. So in order to avoid any shocks, we should not put water, or we should not use water as an exhaust to exhaust the fire in case of electrical appliances. And in case of fuel, what happens? In case of fuel, in order to exhaust the fire in fuel such as petrol, diesel, CNG, LPG, the oil still floats in water because of its less density, and that's why it still burns. That's why water cannot exhaust these fuels. Okay, all right. So what shall then we use in order to exhaust electrical appliances fire, or in case of your the other one, fuel? We should use carbon dioxide, which contains sodium bicarbonate or potassium bicarbonate. What is the reason of out of it? The reason is that sodium bicarbonate is used, and how it is stored? Carbon dioxide is stored in case of very high pressure in the cylinder. लाल कलर का जो cylinder होता है. The reason is that carbon dioxide has very high density and it covers the oxygen. It cut off the oxygen supply to that of the material and hence exhausts the fire. Okay, this is what we have learned. This was a very small summed up one, and now we'll be reading what are the types of combustion. Let's start. The first is, what are types of combustion? There are three main types of combustion. They are rapid combustion, spontaneous and explosion. ठीक है. तो रैपिड कंबर्जन क्या होता है? रैपिड कंबर्जन नाम से पता चल रहा है. It is a combustion in which a substance burns rapidly and produces heat and light with the help of external heat. Rapid मतलब अचानक से. ठीक है. तो कंबर्शन तीन प्रकार का होता है. रैपिड कंबर्शन, स्पॉन्टेनियस कंबर्शन एंड एक्सप्लोजन. तो रैपिड में क्या होता है? अचानक से आग लग जाती है. ठीक है. तो जब भी मतलब आग लगाते हो तो अचानक से जल जाता है, और क्या प्रोड्यूस होता है? हीट एंड लाइट. Okay, with the help of external heat it is burned. So what is the definition? Rapid combustion is combustion in which a substance burns rapidly and produces heat and light with the help of external heat. यानी कि for example कुछ बाहरी चीज़ आप जलाते हो तभी जाके कुछ external देते हो. जैसे कि मैस्टिक में क्या करते हो? आप आग लगाते हो. मैस्टिक जला के आप कपड़े में आग लगाते हो तो वो बर्न होता है. तो you need some external source in order to
burn it, and that process is called as rapid combustion क्योंकि rapidly आग लग जाती है. Example is burning of LPG. LPG में हम क्या करते हैं, LPG में हम पहले गैस नॉब को ऑन करते हैं, उसके बाद एक लाइटर लगाते हैं, तो वो लाइटर इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल हीट, उसी से आग जलती है और अचानक से जैसे ही आप लाइटर मारते हो अचानक से जल जाती है, एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबर्शन. गॉट इट? वेरी नाइस. नेक्स्ट, spontaneous combustion. Now, what is spontaneous? Spontaneous combustion is combustion in which a substance burns spontaneously and produces heat and light without the help of external heat. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे गैस में हमें गैस नॉब यूज़ करना पड़ता है, देन ऑन करना पड़ता है, देन हम लाइटर लगाते हैं, तब जाके अचानक से आग लगती है. पर स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस में कोई एक्सटर्नल हीट नहीं देना पड़ता. उसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस और सोडियम को हम केरोसिन में स्टोर करते हैं. द ओनली रीजन इज दैट ये स्पॉन्टेनियस बर्न हो जाता है, जैसे ही वो इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट ऑफ योर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट बर्न्स प्रोड्यूसिंग अ वाइट लाइट. एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो जैसे ही फॉस्फोरस को केरोसिन से बाहर निकाला, उसको रखा, वैसे ही वो कुछ भी एक्सटर्नल हीट नहीं दिया, बट वो अचानक से जल गई बिकॉज वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आके जलने लगे. एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. गॉट इट? ओके. नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज एक्सप्लोजन? एक्सप्लोजन आपको पता है, fireworks and all. Okay, explosion is a combustion in which a substance burns suddenly and produces heat, light and sound with the help of heat or pressure. तो एक्सप्लोजन, हमारे जो पटाखे होते हैं वो एक्सप्लोड होते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, नीचे से ऐसे आग लगाते हैं, आग लगाते हैं, ऊपर जाके वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है, साउंड भी प्रोड्यूस करता है और हीट भी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, आप जब भी कोई रॉकेट को आग लगाते हो तो क्या होता है, ऊपर जाके फटता है, एकदम लाइट चमक आती है, साउंड आता है नहीं, पूरा फटता है, उसके बाद हीट भी दिखता है, गर्म, मतलब हीट भी प्रोड्यूस होता है, लाइट भी आती है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है. ओके, एंड एक्सप्लोजन का एग्जांपल पटाखे वगैरह या जो भी बॉम्ब है, दीज आर एक्सप्लोजन. तो व्हाट आर थ्री फॉर्म्स ऑफ कंबर्शन? द फर्स्ट इज रैपिड कंबर्शन, जिसको एक आप पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट देके, सोर्स ऑफ हीट देके उसको हीट और लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं. एग्जाम्पल है आपका एलपीजी, जिसमें आप एक लाइटर से जलाते हो. सेकेंड आपका आता है स्पॉन्टेनियस कंबर्शन, जिसमें कि कोई एक्सटर्नल हीट लाइट नहीं चाहिए, सिंपली आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में रख देते हो आपका फॉस्फोरस को, वो सडन बर्न हो जाता है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन, स्पॉन्टेनियस कंबर्शन. एंड द फाइनल वन इज एक्सप्लोजन, जो कि हमारे पटाखे होते हैं, फायरवर्क्स, उसको आग लगा दो, जाके वो क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड. गॉट इट? ओके, सो व्हाट आर द थ्री फॉर्म्स? Three types of combustion: rapid, spontaneous, and explosion. Next, flame. So, what is flame now? Flame is a zone of combustion of a combustible substance. Flame is a zone of combustion of a combustible substance. ठीक है, तो combustion में क्या होता है, flame जो एक zone है, यानी कि combust हम जब करते हैं, जब आग लगाते हैं तो आग जैसे जलती है, उसी को हम नाम दिया है flame. Okay. Substances which vaporizes during burning produces flames. For example, जब आप वैक्स लगाते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैंडल. जब हम कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है, ये वैक्स वेपोराइज होके फ्लेम बनता है, जो हमें आग ऐसे दिखता है. ठीक है, ऐसे ड्रॉप फॉर्म में जो हमें आग दिखती है वो क्या है, फ्लेम है. और वो फ्लेम क्यों होता है, क्या मेल्ट हो रहा है, वैक्स मेल्ट हो रहा है, तभी हमें वो फ्लेम दिख रही है. और इसका एग्जाम्पल है वैक्स या फिर केरोसिन. Substances which do not vaporize during burning do not produce flames. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर आप बर्न कर रहे हो और वो वेपराइज नहीं हो रहा है, जैसे कि वैक्स वेपराइज हो रहा है, पहले इतना बड़ा कैंडल था, मैंने आग लगा दिया तो फ्लेम क्यों और दिखा. ठीक है, धीरे 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 कैंडल का साइज छोटा होता जाता है कि नहीं. तो अगर कुछ ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज नहीं हो रहा है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल, चारकोल, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते. बट एट द सेम टाइम कैंडल, केरोसिन, ये वेपराइज होता है, घटता जाता है इनका क्वांटिटी, और वो किस रूप में आता है, फ्लेम के रूप में. वही जो वैक्स होता है, जब उसको आग लगाते हो तो बहुत बड़ा सा होता है कैंडल, एकदम वो पूरा छोटा कैसे हो जाता है, क्योंकि वो क्या बन गया, फ्लेम. ओके, सी केरोसिन क्या हो रहा है, केरोसिन खत्म हो जाता है बिकॉज इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लेम. कैंडल द सेम वे, ये जो है आपका फ्लेम है, यानी कैंडल का साइज छोटा हो रहा है, कहाँ जा रहा है, फ्लेम के रूप में आ रहा है.
कोल चारकोल में प्रोड्यूस नहीं होता, हीट प्रोड्यूस होता है, बट यस यहाँ पे इसकी कोई भी क्वांटिटी नहीं घट रही है, इट रिमेन्स द सेम, ओनली चेंजेस द फॉर्म फ्रॉम दैट ऑफ योर वन टू सॉलिड टू दैट ऑफ योर लाइक एशेस। तो यहाँ पे फ्लेम नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द फाइनल वन। ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडल आया, तो एक्चुअली स्ट्रक्चर है क्या? कैंडल का स्ट्रक्चर है ये। अब कैसे स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडल है देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, कैंडल है, कैंडल में आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड की पिक्चर में देखो, यहाँ पे आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है, देन एक येलो पार्ट दिख रहा है, और नीचे एक तो ब्लैक पार्ट दिख रहा होगा, जैसे कि राइट साइड की पिक्चर में दिख रहा है। बाहर एक एकदम फ्लेम, ब्लू फ्लेम दिख रहा है, अंदर एक वाइट येलो दिख रहा है, और अंदर पूरा ब्लू दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, ऐसा आपने खुद देखा होगा। आप आज जाइए, कैंडल लगाइए, उसके बाद देखिए कलर्स क्या क्या दिख रहे हैं। लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो ऐसे ही दिखता है, जैसे इसमें देखते हैं। इसमें देखो, इसमें एक ब्लू पार्ट आउटर साइड में नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल, बहुत ही छोटा ब्लू पार्ट दिखता है एक्चुअली आउटर साइड में पूरा। उसके बाद आपको ये येलो ऑरेंज दिख रहा है, और नीचे जहाँ पे एक्चुअली लेट हो रहा है वो ब्लैक पार्ट, ठीक है, काला पार्ट। ठीक है, नाउ जो ऊपर का ब्लू पार्ट है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, आउट ऑफ जोन ऑफ कंप्लीट कंबर्शन, दैट इज ब्लू इन कलर, हॉटेस्ट पार्ट होता है। जो बीच वाला आपका येलो या ऑरेंज दिख रहा है, दैट इज मॉडरेटली हॉट, ज़्यादा इतना ठंड मतलब गर्म नहीं होता, वो येलो कलर का मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबर्शन होता है। और एक ब्लैक कलर का होता है, जैसे राइट साइड के पिक्चर में दिख रहा है, वो लीस्ट हॉट। ओके, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तीन प्रकार का जोन है, एक आउटर जोन है, एक मिडल जोन है, और एक इनर जोन है। आउटर जोन सबसे ज़्यादा हीट होता है, वो ब्लू कलर का होता है। इनर जोन इज येलो, मॉडरेटली हॉट, और अंदर वाला ब्लैक, यानी लीस्ट हॉट। ओके, दैट्स इट। लीस्ट हॉट क्यों होता है? क्योंकि वहीं से वेपर बनना शुरू होता है, तो इसीलिए वो कम होता है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही शुरुआत होती है। तो क्योंकि ब्लैक पोर्शन में जस्ट वेपर होना शुरू होता है, तो उसका टेम्परेचर कम, येलो वाले में थोड़ा ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा, और ब्लू में बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ राइट साइड में पिक्चर देखो, टेम्परेचर लिखा है। द राइट साइड द पिक्चर वन द ब्लू जोन, जो कि पूरा आउटर साइड वाला है। ठीक है, पहले ब्लैक से शुरू करते हैं। ब्लैक वाला जो इनर है, जस्ट वेपर बनना शुरू हुआ, वो नॉन लुमिनस जोन है। ओके, ये वाला आपका ज़रूरी है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पिक्चर इन एग्जाम, ये दिस इज ओनली टू नो द टेम्परेचर। ओके, नॉन ल्यूमिनस जोन जो ब्लैक कलर का जस्ट वेपर बनना शुरू होता है, जो कम एकदम लीस्ट हॉट रहता है, उसका टेम्परेचर है नियरली 600 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड जस्ट उसके ऊपर वाला जो है थोड़ा सा ब्लू जोन रहता है उसके। ठीक है, वो क्या है, वो है 800 डिग्री सेल्सियस, वो ब्लैक वाले के पास वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद जो येलो कलर का होता है, जो मिडिल जोन है, वो 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और जो पूरा बाहर वाला आपका है, जो ब्लू कलर का पूरा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लू वाला कलर जो है वो नियरेस्ट टू दैट ऑफ ये ब्लैक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो नॉन न्यूमिनस वेल है, जो दिखता नहीं है सही से, वो 1400 रहता है। तो आउटर पास्ट पार्ट इज द हॉटेस्ट वन, मॉडरेटली हीट इज द मिडिल वन, एंड लीस्ट हॉट इज द ब्लैक वन। गॉट इट? दिस इज़ वेरी इजी, आपको बस लेफ्ट हैंड साइड वाला पिक्चर याद करना है। ठीक है, क्यों सबसे ज़्यादा हीट रहता है आउटर पोर्शन? बिकॉज इट अंडरगोज कंप्लीट कंबर्जन, द मिडिल वन पार्शियल कंबर्जन, और नीचे वाला अनबर्न्ड रहता है, नो कंबर्जन। ठीक है, लिटिल कंबर्जन। तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो कंप्लीट कंबर्जन रहता है, बीच वाला पार्शियल, एंड लास्ट वाला लिटिल। दैट्स वाई, दैट्स वाई व्हाट हैपेंस, दैट्स वाई ये जो होता है, इनके जोन अलग है, इनके कलर्स अलग है, उनका टेम्परेचर एंड सब अलग है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली दी theory part. Three main parts: outer zone, middle zone, inner zone. Outer zone, complete conversion of the fuel takes place, and the color of the flame is blue, and the hottest part of the flame. It is non-luminous part of the flame. Okay. So what happens? The right part जो आपका होता है, यानी कि जो आपका outer flame है, ठीक है, आउटर जोन जो है वो ब्लू कलर का जो होता है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रहता है, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट कन्वर्जन हुई होती है, पूरी चली हुई होती है फ्यूल। और नॉन लुमिनस इसलिए रहता है क्योंकि वो दिखता नहीं है, वेरी लाइट इन कलर, ब्लू कलर। ठीक है, नेक्स्ट इस मिडल जोन होता है, पार्शियल कन्वर्जन ऑफ द फ्यूल हुआ होता है, इसका कलर येलो टू ऑरेंज होता है, और थोड़ा मॉडरेटली हॉट होता है, और इसको ल्यूमिनस पार्ट, क्योंकि बहुत ही अच्छा दिखता है। ओके, वही कलर हमें दिखता है ना, इसलिए दैट इज नोन एज ल्यूमिनस पार्ट।
and the innermost part which is black in color is unburned vapors of the fuel and it is least hot. So you have to remember कि ऊपर वाले में सबसे अच्छा कंबर्शन होता है फ्यूल का, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा हॉट रहता है और कौन से कलर का होता है, ब्लू, एंड इट इज़ नोन एज लॉन्ग ल्यूमिनस। बीच वाला पार्शियल कंबर्शन होता है, ल्यूमिनस पार्ट रहता है येलो ऑरेंज कलर का और मॉडरेटली हॉट, नीचे वाला अनबर्न्ड वेपर्स रहता है लीस्ट हॉट। गॉट इट, वेरी गुड। ओके, सो दिस इज व्हाट वी रेड। सो बताओ हमने क्या पढ़ा। चलो डिस्कस कर लेते हैं। So what we read today? Today we read the types of combustion. That is, there are three types of combustion. Rapid combustion, जो कि आपका LPG है, ठीक है। You need an external agent in order to light it. The second one comes is spontaneous. Spontaneous does not require any source of heat from outside. The example is your phosphorus, because phosphorus is highly reactive and it combines with atmospheric oxygen to get burned. And the third one is your explosion, that is your fireworks, which produces heat, light and sound. Okay, next उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट में क्या पढ़ा, फ्लेम। फ्लेम क्या होता है, कोई भी कंबर्शिबल सब्सटेंस जब बर्न करता है उसको वो रिड्यूस होता है क्वांटिटी में, उसी को बोलते हैं फ्लेम, और बाकी जो रिड्यूस नहीं होता दैट इज नोन एज, दैट इज़ नॉट फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल फ्लेम कहाँ है, केरोसिन और वैक्स से फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वो क्वांटिटी घट रही है, बट एट द सेम टाइम कोल एंड चारकोल ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे हमने पढ़ा कैंडल का स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट पार्ट इज द हॉटेस्ट, द मिडल वन इज द मॉडरेट वन एंड द नियरेस्ट टू दैट ऑफ योर जहाँ से आप बर्न करते हो दैट इज लीस्ट हॉट एंड इट इज ब्लैक इन कलर। द आउटर वन इज ब्लू, दिस इज येलो, मिडल वन दैट इज ब्लैक। ओके, आउटर बर्स्ट में सबसे ज़्यादा कंबर्शन हुआ था, कंप्लीट कंबर्शन, मिडिल वन में दैट इज पार्शियल एंड इनर बर्स्ट में अनबर्न रहता है, ठीक है। उसके बाद यही लिखा है, नॉन लुमिनस पार्ट रहता है आउटर और बीच वाला जो होता है लुमिनस। Okay, so I hope you like today's session. If you have got any doubt regarding this particular chapter, you can tell me in the comment section. I'll definitely answer. और किसी को कोई भी regarding doubt है तो मुझे पूछ सकते हो आप, ठीक है। Free feel to question, ask questions. Okay, so और आज हमने पढ़ा तीन parts we covered it. That we studied about the structure of the candle, types of combustion, okay, and what is flame. So I hope that you are getting it, understand हो रहे हो आप। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है, you tell me, I'll definitely tell you. Okay, this is your third part. Okay, and there are even 1 to more parts left for this chapter. It's a small chapter, easy one. So आप पढ़ते रहो घर पे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछो, and practice lots of questions, make diagrams because it consists a bit of diagrams like candle structures and all. Okay, and I'll be seeing you in the next class with a new topic, and that's it. So until then, have a good day and keep smiling. I'll see you next. Bye.